સો જય ગુરુદેવ એવરીવન. બધાને જય ગુરુદેવ. યસ, ઘણા બધા લોકો વિડીયો ઓન કરી લીધો છે. શક્ય હોય તો બધા જ લોકો વિડીયો ઓન કરી લઈએ. આજનું સેશન બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ થવાનું છે અને બહુ જ ફ્રૂટફુલ અને બહુ જ નોલેજેબલ સેશન થવાનું છે. યા तो गुजराती અને हिंदी બે मिक्स में करीશું. हम गुजराती और हिंदी दोनों मिक्स में करेंगे तो सब लोगों को समझ में आए. एंड आज का थीम ही इतना बढ़िया है, कलेक्टिव एफर्ट्स, अ सिम्फनी ऑफ कलेक्टिव एफर्ट्स. यस, तो एक सिम्फनी कैसे बनता है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम बजाए, कोई पण આપણે વાદ્ય વગાડતા હોય તો એને ટ્યુન કરવું પડે, રાઈટ? અને આ સેશનમાં આપણી પાસે એક એવી ચાવી આવવાની છે જેનાથી આપણે આપણું અસ્તિત્વ ટ્યુન કરી શકીએ. અને આપણી સાથે આજે બહુ જ વન્ડરફુલ ગેસ્ટ છે. આપણી સાથે ચેતાંશી દીદી અને દીપ્તિ દીદી. જય ગુરુદેવ ચેતાંશી બેન અને દીપ્તિ બેન. જય ગુરુદેવ. જય Yes. ગુરુદેવ. દીપ્તિબેન જય ગુરુદેવ. સો બે એવા નામ કે જેને ઇન્ટ્રોડક્શનની જરૂર નથી. આખા ગુજરાતમાં જેમને રોક ઓન કામ કર્યું છે અને એસટીસીસ તરીકે સર્વ કર્યું છે ગુજરાતને, અને બંને સિનિયર ટીચર, સિનિયર આર્ટ ઓફ લિવિંગ ટીચર. બધાને ખબર જ છે, ચેતાંશીબેન અમદાવાદથી છે, દીપ્તિબેન જામનગરથી બિલોંગ કરે છે. બંને જણા સિનિયર ટીચર્સ છે અને બંચ ઓફ આર્ટ ઓફ લિવિંગ પ્રોગ્રામ્સ કન્ડક્ટ કરે છે. અને ગુરુદેવના ખૂબ જ આમ શું કહેવાય, મહેકતું ફૂલ એમ કહેવાય ને, ગુરુદેવનું નોલેજ જેમ ફૂલ એક સુગંધ સ્પ્રેડ કરે છે, એવી રીતે ગુરુદેવનું નોલેજ બધી જ જગ્યાએ દેશ વિદેશમાં સ્પ્રેડ કર્યું છે. સો વેલકમ ચેતાંશી બેન અને દીપ્તિબેન. આજનું સેશન આપણે તમારી સાથે બધા જ લોકોને ખૂબ જ્ઞાન મળવાનું છે. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શુડ વી સ્ટાર્ટ ધી સેશન? યા ઘણા બધા લોકો જોઈન થઈ રહ્યા છે. એન્ડ બધા જ લોકોને એક રિક્વેસ્ટ પણ છે, તમારા ભાઈ બંધુઓને પણ કહી દો કે ચલો જોઈન થઈ જાઓ, મીટિંગ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે, બીકોઝ વી હેવ અ પાવર પેક સેશન શેડ્યુલ્ડ ટુડે. યસ. સો હું એક વસ્તુ શેર કરીશ, મારી સ્ક્રીન શેર કરી અને આ સેશનની શરૂઆત કરીશ. યા સો બધા લોકોને ખ્યાલ જ હશે, આપણા ગુજરાતનું ગૌરવ છે આ વસ્તુ. અને 2010માં ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં આપણે ગુજરાતીઓએ એક બહુ સરસ મજાની ઇવેન્ટ કરી હતી. યસ. અને આ ઇવેન્ટનું જે મેઇન થીમ હતું, દેટ વોઝ કલેક્ટિવ એફર્ટ્સ. યા સો નન અધર દેન ચેતાંશીબેન દવે આખું આ ઇવેન્ટ કોર્ડિનેટ કર્યું હતું. એન્ડ more than 5,000 prasad items, to be specific 5,612 prasad items કરી હતી. and it was superb. I mean, બહુ સરસ રીતે થયું હતું. તો હું ચેતાંશીબેનને ઇન્વાઇટ કરીશ, દીદી આટલું મોટું એક વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ કરવી, યા એન્ડ કેવી રીતે કોર્ડિનેટ કર્યું, કેવી રીતે એક આપણે બધું એક સરસ મજાનું કર્યું જેનાથી એક સક્સેસફુલ થયું, ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં નામ આવ્યું. हाँ, अमुक लोगों ने हिंदी पण જોઈએ છે. तो कैसे दीदी ये पॉसिबल हुआ कि 5,600 प्रसाद आइटम्स एंड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इसके पीछे का रहस्य बताइए. हाँ. सो जय गुरुदेव सबको. शुरुआत मैं ऐसे करूंगी कि कुछ भी किया नहीं और ये सब कुछ हो गया. बस यही एक वन लाइनर एक्सपीरियंस है मेरा ये इवेंट का. हाँ. क्योंकि 1 महीना मिला था ये इवेंट करने के लिए, थोड़ा शॉर्ट नोटिस में. पर कैसे हुआ, वो बोलते हैं ना, जब संकल्प लेते हैं ना, बहुत सब मिलके ज्यादा और सब एफर्ट्स रखने लगते हैं ना, और सबकी कॉन्शियसनेस एक हो जाती है, तभी हायर कॉन्शियसनेस टेक ओवर कर लेती है. तो यही हुआ पूरा इवेंट पे हमारे साथ. तो 5,612 आइटम्स. हाँ. तो देखो, घर में कभी कभी ऐसा होता है कि 10 लोगों के लिए भी खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, 10 आइटम से भी ज्यादा. और सोचो इतने लोग ने इतना सब कुछ कैसे किया.
और पूरे गुजरात से सब लोग जुड़े थे, छोटे गांव से लेके बड़े सिटी, सब टीचर्स, सब वॉलेंटियर्स का योगदान था ये इवेंट। गुरुदेव आज भी हर जगह दिल्ली जाते हैं या फॉरेन में जाते हैं, गुजरात ने मिलके किया प्रसाद, ये सब ने ऑफर किया। इट इज नॉट ओनली द फूड, ये सब ने अपना भाव प्रकट किया था। तो बाहर से तो हुआ था गुजरात से, और उस दिन जब ये इवेंट था तो 3,000 आइटम्स यहाँ बने थे। और देखो ये 5,500 आइटम बनने के लिए 4,000 से भी ज्यादा कुक थे। इट्स ओनली अ कुक, हाँ। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके अलग अलग डिपार्टमेंट भी बहुत अलग थे, कितने लोग जुड़े थे। मे बी मोर देन थाउजेंड्स पीपल हैव ज्वाइंड दिस प्रोजेक्ट, तभी जाके इतना सुंदर ये बोलते हैं ना, अलग अलग फूल मिलके बड़ा गुलदस्ता गुरुदेव का इवेंट हुआ। और उस दिन जब ये इवेंट था, उस दिन मोर देन 3,000 आइटम्स 5 घंटे में बनी थी, और वो डिस्प्ले हुई थी एक ही स्टेज में 2 घंटे में। तो सोचो कितना मैन पावर, कैसे उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, पूरा टेकन केयर हो गया था। तो ये बोलते हैं ना, संगठत्वम, टीम वर्क। तो एक ड्रीम था ये करने का, जैसे जन्माष्टमी हम करते थे छोटा छोटा, पर एक ड्रीम था। तो बोलते हैं ना, टीम वर्क मेक दिस ड्रीम हैपन्स, ये सपना जो पूरा हुआ ये सबके सहयोग से, सब साथ में जुड़े। तो सब लीडर भी थे और सब फॉलोअर भी थे, ऐसे ये बहुत सुंदर सा काम हो गया। तो सब में ऐसी अलग अलग क्वालिटीज होती है, तो अपना अपना योगदान। ऐसा नहीं है सबने खाना ही बनाया था, हाँ, प्रसाद ही बनाया था, किसी ने प्रसाद पैक किया, किसी ने ट्रांसपोर्ट किया, किसी ने जाके ये प्रसाद को बांटा गरीब बच्चों में। तो सब मिलके कुछ इतना बड़ा हुआ। और मैं बताऊं एक छोटा सा एक अनुभव के, एक टीचर थे, उन्होंने पूरा जो मिल्क की आइटम थी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया था, मोर देन 60 आइटम्स। अब उनके घर गाय थी, काऊ थी, गिर गाय, तो बोले ये तो सब हम करेंगे। अब उसी दिन सुबह उनके घर में कुछ डेथ हो गया, तो वो तो नहीं कर सकते प्रसाद, वो सूतक लग जाता है, वो इमीडिएटली घर से निकल गए और 4 वॉलेंटियर को बुलाया, अब ये दूध पड़ा है, ये सब है, आप करो। अब वो सबको, किसी को कुछ नहीं मालूम था कैसे 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 क्या करना है। पर थोड़ी देर में कोई महाराज आए और बोले, "हाँ, मुझे खाना चाहिए।" तो ये वॉलेंटियर ने को, क्या कर रहे हो इतना सारा दूध? तो बोला, हम कुछ ऐसे प्रसाद, तो मैं तो मथुरा से आया हूँ और वहां मैं यही काम करता हूँ, मंदिर में प्रसाद बनाने का। और उन्होंने 2 घंटे में 60 आइटम्स बना दी और वो चले भी गए, मालूम भी नहीं पड़ा। सो ये सब जब अनुभव सुने ना, तभी यही रियलाइज हुआ कि हम तो हम्म। बड़ा संकल्प ले लेते हैं और एफर्ट डालने शुरू कर देते हैं, फिर भगवान को भी आना पड़ता है हमारी मदद के लिए, अगर हम हमारी क्षमता से ज्यादा कुछ सोचने लगे, है कि नहीं? हाँ। और सब में अलग अलग क्वालिटीज है, बस वो निखर आनी चाहिए जब हम सेवा करते हैं तो। तो यस। चेतांशी दीदी, ऐसे कह सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या कलेक्टिव एफर्ट होता है तो डिवाइन भी, मतलब जो एक यूनिवर्सल एनर्जी है वो भी जुड़ जाती है हमारे साथ। टेक ओवर ही हो जाता है, एब्सोल्युटली राइट। या सो यू नो मुझे भी एक चीज याद आ रही है कि मैं 2013-14 में एकदम ताजा ताजा गुरु पूजा पंडित बना था। एंड तभी हमारे दीप्ति दीदी स्टेट टीचर्स कोऑर्डिनेटर थे। एंड उन्होंने एक संकल्प लिया था कि एक वीक में मैक्सिमम गुरु पूजा अक्रॉस गुजरात ऑर्गेनाइज और परफॉर्म करनी है। तो मुझे अभी भी याद है वो 10 से लेके 17 जुलाई 2014 के जो 7 दिन थे, 8 दिन थे, उसमें 4,000 गुरु पूजा एक वीक में परफॉर्म हुई थी गुजरात में। तो ये भी एक इतना बड़ा कलेक्टिव एफर्ट था कि जिसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, मतलब इट वाज वेरी ट्रू। मतलब बहुत एकदम क्या बोलते हैं, एक भक्ति की लहर उठ गई थी पूरे गुजरात में। सो दीप्ति दीदी, कैसे पॉसिबल हुआ ये, हम आपसे भी जानना चाहते हैं। इतना बड़ा प्रोजेक्ट एक साथ कैसे हो गया, उसका भी सीक्रेट शेयर कीजिए। हाँ हाँ। एक एक सेंटेंस में अगर इसको बताऊं तो इंटेंशन। जब आपका इंटेंशन प्योर होता है तो बाकी की चीज अपने आप होना शुरू हो जाती है। यस। तो जैसे उस वक्त चेतांशी जी और मैं दोनों एसटीसी थे, और हमारे साथ 4 जोन के 8 जोनल जुड़े थे। तो एक सिर्फ थॉट आया
उस कोट को हमने सिर्फ शेयर किया, और बाकी के 8 जोनल और चेतांशीबेन सब साथ में मिलके यस, तो एक इंटेंशन किसी ने बताया और बाकी के सब लोगों का उसके साथ जुड़ना। तो वो एक ना, जब लीडर जब होते हैं, वो जब साथ में मिलके कुछ जोड़ के काम करने की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, करीब करीब 300 गुरु पूजा पंडित हमारे साथ जुड़े उस इवेंट में। और वो 300 गुरु पूजा पंडित ने अपने आप से ये संकल्प लिया कि वो कितनी पूजा करवाएंगे। एक एक तरफ से आप देखो तो अलग अलग घर में जाके अपने गुरु पूजा पंडित इस तरह से अलग अलग जो परफॉर्म किया गुरु पूजा को, माय गुडनेस, वो चैंटिंग, वहां का वो माहौल, छोटा सा सत्संग, अगर हम एक गुजरात के लेवल पे अगर उसको देखा जाए तो कितनी बड़ी चेतना उठ गई एक छोटे से इंटेंशन से, अगर देखा जाए तो। और इसमें सबसे बड़ी बात चेतांशी बेन को भी शायद याद होगा ये, कि सबसे बढ़िया क्या हुआ, जब भी हम ना गुजरात में जब भी कहीं पे पूजा करते हैं, तो ना वो कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कोई 10 रुपया भी रखता है, कोई 10,000 भी रखता है, कोई 1 रुपया भी रखता है। तो हम दोनों ने ये मिलकर ये तय किया कि किसी ने 1 रुपया भी वहां पर रखा है, वो वही फॉर्म में एक ना अच्छी तरह से उसको डेकोरेट करके, उसका जब हम नेक्स्ट इवेंट करने गए, जब जन्माष्टमी पे हम नेक्स्ट इवेंट के लिए जब गुरुदेव के पास गए, तब ये पूरा उसको डेकोरेट करके वही हमने गिफ्ट स्माइल के लिए ऑफर किया। यू नो मैं आज भी वो बात याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक एक व्यक्ति ने 1 रुपया भी दिया, वही सिक्का हमने गुरुदेव के पास वहां पे ना वो प्रसाद के रूप में दिया। तो ना जब एक कलेक्टिव एनर्जी के साथ वर्क होता है ना, तो सबके पास अपना अपना कुछ आइडियाज होता है, उसको लेके जब ना वर्क करते हैं ना, तो ना हमको भी वो मौका मिलता है वो ग्रेटिट्यूड ऑफर करने का। और गुरुदेव तो बहुत खुश होते ही है इन सारी, जब जब भी कलेक्टिव एनर्जी से कुछ भी वर्क हुआ है तो वो खुश होते ही है। तो इतना बढ़िया वो उस वक्त का वो इवेंट रहा, उसको मैं इवेंट बोलूंगी ही नहीं, एक्चुअली मैं उसको इस तरह से बोलूंगी, एक ना एक इस तरह से भक्ति की लहर उठी। तो उस भक्ति की लहर कभी सत्संग से उठती है, कभी साधना से उठती है, कभी इस तरह से पूजा के द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो ये एक सुंदर सा एक्सपीरियंस हमारा रहा इस इवेंट के लिए। सो अमेजिंग दीदी। सो ये तो एक इवेंट की बात हो गई, लेकिन हम हर साल जन्माष्टमी देखते हैं तो हर साल इतने लोग यहाँ से जाते हैं एडवांस कोर्स करने के लिए बैंगलोर, इतना बड़ा उत्सव करते हैं। हाँ, हमने दिल्ली में जब भी अपना WCF हुआ तो इतना बड़ा गरबा का जो आयोजन था, उसमें भी चेतांशी दीदी ने एक बहुत लीडरशिप का रोल था, पूरा उन्होंने ऑर्गेनाइज यहाँ से हजारों लोगों को ले जाकर स्टेज पे गरबा करवाया था। एंड एक उत्सव अगर डिफाइन किया जाए तो तुरंत गुजरात से चेतांशी दीदी का नाम आ जाता है मन में। इतना सब कुछ दीदी करते हैं आप, तो ऐसा कौन सा पॉइंट लाइफ में था, या फिर कब आपको ऐसा रियलाइज हुआ कि मुझ में इतना पोटेंशियल है कि मैं सोसाइटी को सर्व कर सकती हूँ? एंड उसके बाद इतना सब कुछ हुआ, इतने लोगों तक गुरुदेव का ज्ञान पहुंचा, तो वो कौन सा मोमेंट था आपकी लाइफ में जब आपको ये रियलाइज हुआ कि मुझे आई एम हियर फॉर सेवा? या सो पहले तो जैसे हमने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया और ये सब आगे बढ़ते गए, अच्छा लगा, साधना अच्छा लगा, तो आगे जैसे खेल खेल में बढ़ते गए, थोड़ा सेवा भी किया, सब करते रहे। फिर जब हमने TTC फेज 1 किया ना, टीचर बोलते अभी आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, मैं हमेशा बोलती हूँ जब टीचर बोलते हो ना अभी आप नेक्स्ट स्टेप के लेवल में जाओ, एडवांस किया है तो आगे बढ़ो, टीचर बनो VT, तो मैं हमेशा पहले ऐसे बोले टीचर पुश करते, पर अभी मैं समझती हूँ गुरुदेव का ही कॉल है, किसी को माध्यम बना के हमें वो खींच रहे हैं एक बहुत सुंदर से काम के लिए। तो मेरा ही ऐसा TTC फेज 1 में गई, और ऐसे ही खेल खेल में गई थी, कुछ टीचर बनने का इरादा भी नहीं था, चलो सब जा रहे हैं बैंगलोर तो घूम के आएंगे। पर उस वक्त मैं
मैंने जो अनुभव किए मेरे कोर्स में, इतने अमेजिंग थे, मतलब कुछ अलग सी दुनिया मुझे लग रही थी। और छोटी छोटी प्रोसेसेस में ऐसे लगता है अरे मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये हो रहा है, कैसे हो रहा है। और फिर से एक छोटा सा अनुभव, जैसे पहली बार इतना दूर गए थे घर से, तो सुबह सुबह या कैसे रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाने की आदत होती है। तो सुबह एक दिन ऐसा लगा कि अरे यहाँ तो सुबह सुबह 5 बजे ड्राई फ्रूट्स कहाँ मिलेंगे, कैसे खाएंगे घर पे। तो ऐसे छोटा सा विचार आया था, वो इच्छा भी नहीं थी। और उसी दिन कुछ पूजा थी और मेरा 10 बजे का दूसरा सेशन था। तो दौड़ते दौड़ते एक वेदा बॉय आया और मेरे हाथ में इतना बड़ा सा पैकेट थमा दिया। इतने सारे लोग थे, ऐसे दौड़ दीदी दीदी दीदी, वो साउथ इंडियन लैंग्वेज में, और बोले प्रसादम प्रसादम। इतना मालूम पड़ा, बाकी का मालूम नहीं पड़ा। देखे तो इतने सारे काजू और बादाम थे, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि ये क्या 4 घंटे में, ये ऐसी भूमि है, ऐसा ये कौन सा जगह पर मैं क्या कर रही हूँ। फिर टीचर से जब भी शेयर किया अनुभव, तब टीचर ने बताया कि इफ योर कमिटमेंट इज वेरी स्ट्रांग एंड इफ यू आर रेडी टू सर्व द सोसाइटी, then you are definitely taken care, or small thing will be taken care. तो यही मेरा अनुभव कि लोगों के लिए सोचना शुरू किया तो हमारा तो अपने आप काम हो ही गया। तो मैं समझती हूँ मयूर भैया कि ये एक कॉम्बिनेशन है, एक खुद के लिए और गुरु अपने लिए एफर्ट का, एक मेहनत का, एक संकल्प का, एक बोलते हैं ना कि एक जोश होता है, और फिर दूसरा उसका पहलू है ग्रेस, कृपा। तो दोनों जब साथ में चल जाती है ना, मैंने बोला छोटे से बड़ा इवेंट कैसे मालूम पड़। मैं जब टीटीसी से आई और मेरा पहला इवेंट था डीएसएन ऑर्गेनाइज करना, ऐसे ही ले लिया रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बोलते हैं ना कि इट्स नॉट गिवन इज टेकन, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया और 125 लोगों का डीएसएन 15 दिन में ऑर्गेनाइज किया। तो मुझे लगा कि वही शक्ति थी जो मैं आई बैंगलोर से, और उसने काम किया, और तब से गाड़ी शुरू हो गई, तो रुकी नहीं है उनकी कृपा से। तो मैं बोलूंगी एक चीज यहाँ पर कि एफर्ट्स एंड कृपा विल गोस टूगेदर। खाली एफर्ट से भी नहीं चलता, और खाली ऐसे नहीं बैठे रहे, हम तो साधना बहुत करते हैं तो गुरुदेव। मैं आई विल गिव यू स्मॉल एग्जांपल। हमारे बैंक में लॉकर होते हैं, और उसकी एक चाबी हमारे पास होती है, यू कैन रेज योर हैंड, यस। और दूसरी चाबी मैनेजर के पास होती है। तो क्या होता है, हम सोचे हमारी चाबी लगा ले खाली और खजाना निकाले, इट्स पॉसिबल? हाँ ना? नो। और कभी मैनेजर को लगता है चलो ना मैं खोल के लगा देता हूँ और निकल जाए कुछ, वो भी संभव नहीं है। जब क्या होता है, हमारी चाबी लगती है, मैनेजर की चाबी लगती है, दोनों की साथ में घूमती है ना, तो फिर तो लॉकर खुलता है। ऐसे हमारे जीवन में ऐसा है, हमारे शुद्ध संकल्प और 100% एफर्ट्स, सब शक्तियां एक बाजू लगती है ना, तभी मैनेजर की चाबी है वो कृपा, वो ग्रेस। तभी वो हम जितना घुमाते हैं ना, वो उतनी घूमती है, इजंट इट? तो इट्स अ वाइस वर्सा। ऐसा नहीं समझना कि खाली साधना करने से और ऐसे ही ये मार्ग पे आगे बढ़ते, जितने एफर्ट्स डालते हैं ना, उतनी कृपा। और जब दोनों साथ में होगा ना, यू विल नेवर नो कौन सा खजाना हमारे पास, हमारे हाथ में आ जाएगा। तो यही है, अपनी संकल्प शक्ति, एफर्ट्स बढ़ाओ, देन ग्रेस विल ऑलवेज फ्लोज। तो इसीलिए मैं हमेशा वीटीपी, आई कंडक्ट वीटीपीज, तो मैं हमेशा वीटीपी में एक बहुत चीज बोलती हूँ कि देखो हमने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया और बहुत सारे कोर्सेज करते आए ना, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, ये सब कि बहुत बदल जाती है, हमारा रवैया बदल जाता है, बोलते हैं ना हमारे एटीट्यूड बदल जाते हैं लोगों के प्रति, और एक सहन शक्ति आ जाती है, बहुत सारी चीजें बदलते हुए देखा है अपने आप में। पर मैं बोलती हूँ जब हम वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं ना, वो प्रोग्राम में जो बदलता है ना, वो यहाँ बदलता है, हमारी किस्मत की रेखाएं बदलती है। हाँ, बोलते हैं ना हमारा नसीब बदलता है जब हम वीटीपी, क्योंकि आफ्टर वीटीपी योर लाइफ इज नॉट ओनली योर लाइफ, यू बिकम अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ गुरुदेव। सो फिर हमारे जीवन की रेखा चेंज कर देते हैं, क्योंकि अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उनका हो गया। बाजू वाले पड़ोस, हमारे हमारे बच्चे को पड़ोसी रखता है ना अच्छी तरह से, चॉकलेट देता है तो हम भी खुश हो जाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं जब जरूरत आती है। तो अगर हम पूरी ये दिव्यता, ये डिवाइन चाइल्ड, गुरु ईश्वर के चाइल्ड इंसानों के लिए हम कुछ करेंगे ना, तो वो हमारा ख्याल रखेगा ही। सो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज इंस्पायर पीपल कि गो इन दिस मार्ग। मेरा अनुभव है कि
साधना करके, थोड़ा थोड़ा सेवा करके नहीं बढ़े, आगे बढ़ते गए। हाँ, एडवांस कोर्स किया है तो वीटीपी कर लो। हाँ, अगर यहाँ का बोलते हैं ना क्यों करना है, सबसे पहले तो हमारा स्वार्थ देख लो। भाई गुरुदेव का हृदय बदलना बनना है, हमारी किस्मत को चमकाना है, भाई चलो और आगे बढ़ते हैं, बैठे नहीं रहना है, जस्ट बिकम अ वॉलेंटियर। सो इसीलिए आई ऑलवेज से पीपल एंड लोग जो टीम में काम करते हैं, आप सेवा ही कर रहे हैं तो व्हाई नॉट यू टेक ट्रेनिंग एंड डू प्रॉपर सेवा, isn't it? अमेजिंग, So, अमेजिंग चेतांशी दीदी। सो एवरीवन इन द जूम लिंक, जो भी जूम लिंक में है और जो भी हमको अभी लाइव देख रहे हैं जूम लिंक में है, तो आप JGD हाँ मैसेज कर सकते हैं मैं चैट बॉक्स में, इफ यू आर लिसनिंग टू दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। या एंड अगर आप लाइव देख रहे हैं तो यू कैन कमेंट JGD। यस, थैंक यू मेहुल भाई, थैंक यू पार्थ, गोपी, थैंक यू सो मच। यस, सो यू नो आज का कोइंसिडेंस ऐसा है ना कि गुजरात के 3 STCs ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, या एक्स STCs आई शुड से चेतांशी बेन, दीप्ति बेन एंड माई सेल्फ। वाओ, थैंक यू हेमल जी, तेजल शाह, वाओ, सो मेनी पीपल आर लिस्निंग। यस, सो यही सवाल मैं दीप्ति दीदी से भी पूछना चाहूंगा। दीदी, आपकी लाइफ का एक ऐसा इंसिडेंस जो आपको और कमिटमेंट के साथ ये पथ पर जोड़ने के लिए मजबूर किया, या मतलब ऐसा कि जहां आपको आपका पोटेंशियल पता चला कि नहीं, दिस इज व्हाट आई कैन ऑफर टू सोसाइटी। दीप्ति दीदी। एक्चुअली ये बड़ा मजेदार बात है कि जब मैं टीटीपी फेज 1 में गई, उस वक्त मैंने सिर्फ 2 एडवांस कोर्स किए थे, और वो वैसे ही खेल खेल में किए थे। ना मैंने सहज किया था, ना मैंने डीएसएन किया था, क्योंकि उस वक्त का क्राइटेरिया था कि एक डीएसएन करना है, सहज समाधि करना है, और 2 एडवांस कोर्स करने हैं। बस किसी ने मुझे बोला कि अच्छा है तुम जाओ टीटीपी में जाओ, तो चले गए ऐसे ही। और सिर्फ इतना ही था कि भाई आश्रम देखना है, कुछ और नहीं, तो आश्रम तो देख लेंगे और क्या है। तो इस तरह से वहां पे गए, और पहले दिन जो शुरुआत हुई, बोला माय गॉड भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं करना है। हम्म? वो एक डॉर्मेट्री थी, डॉर्मेट्री में जिस तरह से रहना, यू नो, हम 60 लोग थे, सिर्फ 4 बाथरूम थे, किस तरह से सब मैनेज होगा। तो फिर जाके किसने बोला अच्छा ठीक है, इसको भी एक चैलेंज की तरह, क्योंकि मैं ना पहले से ही एक फाइटर तो रही हूँ, किसी भी चीज की चैलेंज लेना मुझे पहले से अच्छा लगा है। तो उस फाइटर के तौर पे मैंने उस चैलेंज के तौर पे वो 15 दिन वहां पे रहने का तय किया। और वहां पे ना वो जब भी हम ना कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो सेवा रहता है। उस वक्त ना मैं बहुत ही पतली थी, तो बड़ा सा टॉप के अंदर घुस जाती थी वो। मेरे टीचर बोलते थे तुझे यही करना है, क्योंकि मैं थोड़ा एटीट्यूड के साथ रहती थी, तो उसी के अंदर घुसा देते थे। और वहां पे मैं एक ही क्या, ये काम वाली वाला काम करने आए हैं, ये मेरे मन में ये थॉट रहता था हमेशा के लिए, जब भी मैं वो सारा करती थी। लेकिन जब टीटीपी करके 15 दिन के बाद जब हम बाहर आए, और आपको बोला आपको जाके वहां पे नव चेतना लेना है, और ना कुछ ग्रुप बनाते हैं, मैं उस वक्त जब वो 15 दिन के बाद वहां से निकली, तो टीचर बनने का तो वो कोई संकल्प उस वक्त था नहीं था, कुछ नहीं था। पर जब निकली तब एक चीज लेके निकली कि मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम में अपना 100% पार्टिसिपेंट दूंगी। तो मैं इंडिविजुअल बहुत बेस्ट थी, अगर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बोलूं तो मैं इंडिविजुअल बहुत बेस्ट थी। मैं आके एक कोर्स में 15-20 पार्टिसिपेंट आराम से दे सकती थी, और मैं वो करती भी थी। कभी कभी ऐसा होता था मैं जितने पार्टिसिपेंट देती थी उतना टीचर का कोर्स रहता था। अगर मैं 25 पार्टिसिपेंट लाती थी तो 25 पार्टिसिपेंट का टीचर का कोर्स रहता था, इस तरह से। तो इंडिविजुअली मैं पार्टिसिपेंट देने में हर चीज में अच्छी थी। पर जैसे 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 टीचर बनी, टीचर बनने के बाद सेंटर में और टीचर के साथ जुड़ी, तब जाके ये समझ में आया कि कलेक्टिव एनर्जी कितना इम्पोर्टेंट है इसका। अकेले तो हम कर सकते हैं हर चीज को, पर वो कॉम्बिनेशन के साथ करने में हमारा स्किल भी बढ़ता है। जो चीज हमें नहीं आती वो हम दूसरों से सीखते हैं ना। ये सारा चीज हम जब हम कॉम्बिनेशन के साथ करते हैं,
एक पिक्चर अभी आई है, फाइटर करके एक पिक्चर आई है अभी, हम अगर उसका जिक्र करें तो उसमें ना एक चीज मुझे वो मेरे अपनी लाइफ से बहुत रिलेटेड करती हूँ। इंडिविजुअली जो हीरो था वो इंडिविजुअली बेस्ट था, वो सबसे बेस्ट फाइटर और पायलट था, लेकिन वो इंडिविजुअल बेस्ट में वो जब ग्रुप के साथ नहीं जुड़ा तो अपने ही ग्रुप के 2 मेंबर को वो गवा चुका। जब हम ग्रुप के साथ नहीं जुड़ते ना, तब बहुत सारी चीजों को हम मिस कर देते हैं। पर जब तीसरी बार जब इमरजेंसी आई तो उन्होंने अपने स्किल से सबको बचाया भी। तो मैं ऐसा मानती हूँ दोनों जरूरी है, एक कलेक्टिव एनर्जी से हम एक ग्रुप एफर्ट से भी वर्क कर सकते हैं, और खुद का इंडिविजुअल स्किल है उस स्किल के साथ भी हम साथ में रह सकते हैं। इसको समझते समझते जिस तरह से कोर्स लेने लगे और टीचर्स के साथ के लिए कोर्स ऑर्गेनाइज किया, खुद के लिए बड़ा संकल्प लेने लगे। मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट कोर्स, क्योंकि मैं पहले यस की टीचर थी, तो मेरा फर्स्ट यस कोर्स 83 पार्टिसिपेंट का था। तो उन्होंने इतना ब्लास्ट कर दिया कि मुझे वो बड़ा सोचने की फिर आदत हो गई। तो ना जैसे हम कलेक्टिव एनर्जी के साथ कुछ शुरू करते हैं, एक बार आपको कुछ बड़ा दिखता है ना, फिर मन बड़ा ही सोचता है, फिर मन छोटा नहीं सोचता। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं एक वीटीपी ऑर्गेनाइज हम कर रहे हैं, तो देखो एक कलेक्टिव एनर्जी भी है, सब लोग साथ में मिलके भी एफर्ट लगा रहे हैं, और इंडिविजुअल अपने स्किल के साथ भी हम लोगों को कुछ यहाँ तक पहुंचे उसके लिए अपने स्किल के साथ जुड़ रहे हैं। यही कर रहे हैं ना, यस नो? दोनों साथ में चल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक मेगा इवेंट करने में ये 2 पार्ट है, कलेक्टिव एनर्जी भी जरूरी है, इंडिविजुअल स्किल भी जरूरी है। तो वो गुरुदेव कहते हैं ना, टाइम, एफर्ट और ग्रेस, ये तीनों साथ में चलते हैं ना तो हमें रिजल्ट मिल जाता है। तो ना ये कॉम्बिनेशन सिर्फ बिठाना है हमें ना। तो कभी कभी ना हमारा टाइम ठीक नहीं होता, तो जो कर रहे हैं उसके साथ जुड़ जाए। तो अभी एक ऑलरेडी एक वीटीपी ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हम उसके साथ जुड़ जाए। क्या जुड़ सकते हैं ना हम सब लोग? यस नो ना? आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं, यस, हम जुड़ जाए। कभी कोई लीडर रहता है, कभी कोई लीडर रहता है। मैं एक इवेंट, ये जो जन्माष्टमी वाली मयूर भाई ने याद दिलाया, चेतांशी बेन, और मैं अपनी बात बोलूं उसमें, तो मैंने पूरा एडवांस कोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था, और चेतांशी बेन ने सेलिब्रेशन, इतना बड़ा सेलिब्रेशन। चेतांशी बेन, एक और बात इसमें आप भी जुड़ सकते हो, ये इवेंट 2014 का मुझे याद है कि गुरुदेव ने उस दिन 2 सत्संग दिए थे, चेतांशी बेन अगर आपको याद है तो। यस यस यस, एब्सोल्युटली। संडे का दिन था, और संडे को ऑलरेडी शाम को 5 बजे का सत्संग रहता है, उसमें गुरुजी सारा कन्वर्सेशन कन्नड़ में करते हैं। तो स्पेशली गुजरात के लिए रात को 8 बजे अन्नकूट से लेके हर चीज का जो पूरा ऑर्गेनाइज चेतांशी बेन ने किया था, उसके लिए एक अलग से गुरुदेव ने सत्संग दिया, और पूरा आश्रम ये बोल रहा था ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है कि गुरुदेव ने एक दिन में 2 सत्संग आश्रम में दिए हो। तो जब ना ये जो कहते हैं ना कि कल ही गुरुदेव इसके बारे में बोले, ये पर्व के बारे में जो बताया गुरुदेव ने, जो अपने प्रधानमंत्री जी ने जिसके बारे में बताया, अपना तो जीवन में हर इवेंट पर्व ही है। आप देखो तो ये हर टीचर और वॉलंटियर का एक्सपीरियंस है, हम हर चीज एक पर्व, एक उत्सव के साथ ही करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वीटीपी जो चल रहा है ना, वो भी एक उत्सव के साथ चल रहा है। बस हमें उस उत्सव में अपनी एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करना है, मुझे ये लग रहा है मयूर भाई, है ना? सो ट्रू, सो मयूर भाई, ट्रू। मैं एक सेंटेंस बताऊंगी। दीप्ति मैम ने जैसे ये माहौल बना था ना 2014 में, सबने अपना अपना योगदान दिया, पर गुरुदेव का सेंटेंस वाज व्हाट के ये गुजरात वाले आते हैं और आश्रम को वृंदावन बना देते हैं। Yes. तो गुजरात इज ना, ये जो भी सब करते हैं, पर गुजरात तो यस, तो यही गुजरात का ये वीटीपी बहुत सुंदर होना चाहिए मयूर भाई, राइट? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू।
दीदी, वो मुझे भी याद है अभी कि उसमें शायद 2000 लोग थे एडवांस कोर्स करने, गुजरात से एक साथ यस गए थे। यस 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 तो वो कोर्स का जो लोगों का एक्सपीरियंस था कि हम बोलते हैं ना, संघे शक्ति कलि युगे। यस तो यस जब भी वो संघ में करते हैं, और गुरुदेव को भी हमने सुना है कि वो एक यज्ञ हो जाता है जब भी कोई बड़े संघ में हम चीज करते हैं। तो ये मेगा वीटीपी भी जो हो रहा है अपना 3rd 4th फरवरी एंड 10th 11th फरवरी वासद आश्रम में, एक तो यहाँ मैं ये जरूर मेंशन करूंगा कि गुरुदेव का जो ग्रेस है, पहले 15 दिन फेज 1 होता था, फिर 15 दिन फेज 2, वो भी बैंगलोर आश्रम जाओ, और जैसे दीप्ति दीदी शेयर कर रहे थे सब कुछ, ऑड्स के अंदर टीटीपी करना पड़ता था। नाउ मेगा जो वीटीपी है सिर्फ 2 वीकेंड। आई मीन, इजंट इट अमेजिंग? गुरुदेव ने बस वो छप्पड़ फाड़ के देना, दे ही रहे वो तो कब से, है ना? तो ये तो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बस लूट ले ये चीज को। व्हाट डू यू ऑल से? क्या बोल रहे सब लोग? यस, है ना? यस तो हम करीबन यहाँ पे जितने भी 115 लोग हैं, और जितने भी लोग हमको लाइव देख रहे हैं, हम सब लोग ये इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करके, गुरुवार गुरुदेव का दिन है, गुरुवार सुबह तक सिर्फ एक वीटीपी पार्टिसिपेंट पर पर्सन रजिस्टर करे ना, तो उनके जीवन का उद्धार हो जाएगा जो वीटीपी में आ रहे हैं, है ना? क्योंकि वो मेगा प्रोग्राम का जो एक साथ संघ का जो इफेक्ट है, वो कुछ कमाल कर देता है। मतलब मैंने अंतरनाद जो पुणे में हुआ था कोर्स, उसमें मैंने मेरा फर्स्ट यस प्लस प्रोग्राम किया था। तो मेरे साथ 1350 जितने लोग थे फर्स्ट यस प्लस प्रोग्राम में। एंड इट वाज सो अमेजिंग, मतलब उसको उसका कुछ वर्णन नहीं है कि वो इतने सारे लोग एक साथ गुरुदेव की आवाज में सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं। ये हम खुद जो, ये एक, वो आप गुजराती में कहिए कि आंगળી ચીંધ્યાનું पुंज है। यस यस। यहाँ पे कितने लोग जुड़ना चाहेंगे कि मैं आज एक कमिटमेंट लेता हूं कि अगर मैंने एडवांस कोर्स किया है और रजिस्ट्रेशन करना बाकी है, तो मैं गुरुवार सुबह के पहले तक वीटीपी का रजिस्ट्रेशन कर दूंगा और जुड़ जाऊंगा या जुड़ जाऊंगी। और अगर कर लिया है तो एक और को अपने साथ लेके आएंगे। वो चैट बॉक्स में यस लिखे, है ना? सब लोग थम्स अप कर सकते हो, यस लिख सकते हो चैट बॉक्स में कि हम एक पार्टिसिपेंट मिनिमम रजिस्टर कराएंगे मेगा वीटीपी में। हाँ, वाह, फैंटास्टिक! देखो, किशोर जी, काजल जी, पूनम जी, गोपी, वाह, तरंग भाई, दीपाली बेन, सब लोग यस लिख रहे हैं। यस, जसवंत भाई, वेरी, ये जील चाहिए, ये एंथुजियाज्म है। तो हम सिर्फ एक बंदे का या एक इंसान का भला नहीं कर रहे, वो मेगा वीटीपी में आएगा और उससे जो ज्ञान की सुगंध फैलने वाली है, वो जो प्रोग्राम्स लेने वाले हैं, वो कितने लोगों को नॉलेज देने वाले हैं, इट गोज ऑन एंड ऑन। यस, वाह, देखो, हिमला जी, यस, फैंटास्टिक, ख्याति जी, सब लोग जुड़ जाए आज, है ना? और ये संकल्प लेके यहां से जाएंगे कि कम से कम एक को तो मैं, और हम सब लोग कर सकते हैं। यस, क्या बोलते हो चेतांशी जी? हम गुजरात टीम तो एकदम नंबर 1 है, सब कर सकते हैं। एकदम यस, डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो पंकज भाई, शैलजा बेन, बकुल भाई, है ना? अपना वीटीपी अभी मेगा वीटीपी नहीं, सुपर मेगा वीटीपी होने वाला है ना? देखो, इतने सारे लोग, सब लोग हैं अभी, मैजिकल फिगर 111। हाँ। वाओ। सो नाइस। यस। सो यस, सब लोग अभी मैसेज वापस, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप में, उसमें भी रजिस्ट्रेशन लिंक आ जाएगा। एंड किसी भी जरूरत है चीज की, कोई भी इंफॉर्मेशन की, तो अपने एसटीसी, जेडटीसी, डीटीसी, सब लोग आपकी सेवा में तत्पर है ना? तो चेतांशी जी, दीप्ति जी, थैंक यू, आपने आज इंस्पायर किया। यस दीप्ति जी, यू वांट टू शेयर एक समथिंग? एक और चीज मैं सिर्फ इसमें जोड़ सकती हूँ। कभी ना वो बात होती है वीटीपी की, जब बात होती है तो इस तरह से कहते हैं कि एक वीक के बाद फिर आपको टास्क मिलेगा, आपको इतना सारा करना पड़ेगा, ये सारा चीज से फिर ना लोग बोले ये सब हमें नहीं करना है, इसलिए हमें नहीं जाना है। ये एक ना कॉमन फैक्टर में जो कॉल कर रही हूँ उसमें ये कॉमन फैक्टर में मैं देख रही हूँ।
तो ना जैसे गुरुदेव ने जो कल बात किया ना कि ये पर्व की जो हम बात कर रहे हैं कि एक उत्सव मना के जब हम करते हैं, आप एक व्यक्ति को भी एक सुदर्शन क्रिया के पथ पर ना उसका एक्सपीरियंस करवाते हो, तो उसके मन का जो सेलिब्रेशन और जो पर्व वो मना रहा है ना, उससे बड़ा और क्या पुण्य हो सकता है, ये भी कह सकते हैं। और खुद के लिए हैप्पीनेस भी क्या हो सकती है, ये भी बोल सकते हैं। तो ना ये सारी चीजों में मत उलझे, क्या होगा क्या नहीं होगा ना। हम यहाँ सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, और जो भी सीख रहे इंडिविजुअल अपनी स्किल और कलेक्टिव एफर्ट, ये दोनों को साथ में लेके एक सुंदर से अपने आप को ना एक नए आयाम के साथ हम सोसाइटी में रख पाएंगे अपने आप को। ये वीटीपी इसके लिए गुरुदेव ने बनाया है। तो वेरी मुझे ट्रू। ऐसा लगता है कि ये सारा जो सुन रहे हैं हम, वो ना वो स्टोरी है ना, वो तेनालीरामा की स्टोरी पता है, मुझे अभी याद आई मयूर भाई। वो हाँ। वो गधे को लेके ना सब्जी बेचने गया। तो गधे को लगा कि चलो मैं अपने मालिक को थोड़ा ना हेल्प कर दूं। तो वो जैसे ही बोल रहा था सब्जी ले लो सब्जी ले लो, तो गधा पीछे से होची 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 कर रहा था। तो वो तेनालीरामा की आवाज ही नहीं सुन पाए थे लोग। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये भीतर का गधा होची होची करता है, वो वहां तक हमें पहुंचने नहीं देता। तो मुझे ऐसा ट्रू। लगता है कि अपने भीतर के उस तेनालीरामा को ढूंढो, अपने आप की आवाज सुनोगे तो यस ही आएगा, कभी नो आता ही नहीं है अपने ग्रोथ के लिए। इसीलिए वीटीपी में अपने आप का आज रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है तो जरूर से करवा लो। और अगर किया है, आपका हो गया है, तो जैसे मयूर भाई ने बताया, एक का संकल्प लेके ही आज सोएंगे। यस मयूर भाई, है ना। यस, फैंटास्टिक। तो पोस्टर भी देखो अपना शेयर किया है, बहुत अच्छा है ना। सो लास्ट में ये सेशन कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन के साथ खत्म करना चाहूंगा, है ना। सो पर्ल्स ऑफ विजडम, गुरुदेव बोलते प्रेजेंट मोमेंट। तो वो प्रेजेंट मोमेंट में जो आंसर आता है उसमें बहुत बड़ी बात होती है ना। तो रेडी दीप्ति दीदी, चेतांशी दीदी फॉर रैपिड फायर? यस। ओह यस यस। यस। Yes. So, first rapid fire for you, Deepti Ben, responsibility. Responsibility in between of life and death. Wow. Chetanshi Ben, happiness. Our own nature. Wow. Deepti Ben, seva. uh, Unconditional act. Fantastic. Chetanshi Ben, meaning of life. Celebration. Oh, जो मेगा बीटीपी में होने वाला है। Yes. दीप्ति बेन, how cope hardships? Acceptance with smile. Oh, super. Chetanshi Ben, how to overcome fears? Oh, by doing more and more seva. Oh, fantastic. By joining Mega VTP. Okay. So, Deepti Ben, one thing you wished you had learned sooner. Car driving. Oh, okay. Chetanshi Ben, one thing you could change if you could go back in time. I think awareness about the spirituality. Wow. Deepti Ben, one worst quality of humanity. Sorry. One worst quality of humanity. Selfishness. ओके। सो वीटीपी जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, सेल्फिश मत बनो, दूसरों का भी करवा दो, है ना। चेतांशी बेन, वन रिडीमिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी। Honesty, and even I can say Maryada. ओ मर्यादा, जय श्री राम। यस। ओके। दीप्ति बेन, टेलीग्राम और व्हाट्सएप? Element. एलिमेंट्स। ओ वाओ। चेतांशी बेन, फेसबुक और इंस्टाग्राम? Oh, both. बोथ। Okay, It's so by last default, one. na? By default, yes, metaverse. Last to दीप्ति बेन, one message to today's youth. आज के युवा के लिए एक संदेश।
don't just go with trend and fashion. Adopt our ancient wisdom too. Wow. And last one to Chetanshi Ben, one message to all those who says, I don't have time to meditate. Oh, I don't have time. Then meditation is a need of the hour for you to manage your life and time both. So must do. Wow. Fantastic. So, claps for both of you for being so sporty. Yes. Thank you so much. आपने इतना sportingly answer दिया and I am sure we all are inspired. हम सब लोग inspire हो गए हैं. And आज सोना नहीं है ना. एक आज लिस्ट में से ढूंढ लो, है ना, सोने से पहले कि किसको मैं रजिस्टर करवाऊंगा या करवाऊंगी. एंड कल पूरा दिन उसके पीछे पड़ जाओ. Yeah, by Thursday morning, you should be registered with paid everything donation, है ना. And best thing would be आप जो भी आपके DTC है या फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा if it is possible अपना जो WhatsApp ग्रुप है वो ओपन कर दिया जाए तो आप उसमें पोस्ट कर सकते हो आप किसको आपने रजिस्टर करवाया है. Yes. So it is 9:30. We are finishing sharp on time. Yes, thank you Chetanshi Ben, thank you Deepti Ben for such an amazing session. And Jai Gurudev to everyone. Jai Thank you so Gurudev. much. Jai Jai Gurudev. Gurudev. Thank you to STCs for organizing such a wonderful series and all the entire organizing team who has made this event very successful. So Jai Gurudev and see you all in Mega VTP. Jai Gurudev. Jai Gurudev. अभी आप ग्रुप में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो. लिंक मैं यहाँ पे ग्रुप का डाल रहा हूँ चैट में. तो ग्रुप अभी ओपन रहेगा तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो सेशन के लिए. जय गुरुदेव.